السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر ایس مروہ مرزا اور لے کر آ چکی ہوں 46 بہت ہی ایکسٹرا اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو جلدی سے چلتے ہیں، لیٹس سٹارٹ۔ گفٹس پیک ہو گئے لیزے؟ نرمین نے اپنے روم سے باہر سٹنگ ایریا کی طرف قدم بڑھانے کے بیچ وہیں دیوار پر نصب آئینے میں اپنے سراپے پر ایکسیسری نگاہ ڈالی تو لیزے باران نے بیک وقت گردن گمائی جو مل کر گفٹ پیکنگ کرنے میں مصروف تھے۔ جی ممی، بس یہ بکٹ رہ گئی، اسے آئی تھنک ایسے ہی رہنے دیتے ہیں، لیزے نے مصروف انداز میں جواب دیا تو نرمین پاس رکی، جس پر باران نے فوراً سے بکٹ میں رکھے پھولوں کے گلدستے سے ریڈ روز نکال کر دادو کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کے لیے دادو۔ باران نے دونوں لیڈیز کے چہروں پر بہار رائج کر دی۔ تھینک یو دادو کی جان، میرا بیبی، تم ابھی تک ریڈی نہیں ہوئے، سکھی انکل کے ساتھ چھوٹا دلہا بننا ہے تمہیں۔ نرمین نے پاس ہی صوفے پر بیٹھے اسے خود سے لپٹا ہی لیا، جبکہ لیزے اب تجسس میں تھی کہ چھوٹے دلہے پر بیٹے کا کیا رد عمل ہوگا۔ دادو، پر میری دلہن تو ہے ہی نہیں، میں دلہا بن کر کیا کروں گا؟ اگر آپ مجھے سلوا پی دے دیں پھر مجھے اچھا لگے گا۔ دونوں خواتین اس چٹانگ بھر کے بچے کی خواہش سنے دنگ رہ گئیں۔ نرمین تو ہنسی روک نہ سکی، البتہ لیزے ضرور ضبط کر گئی۔ تمہیں سلوا پسند آئی ہے؟ نرمین نے اس کو دونوں ہاتھ تھامے پیار سے پوچھا تو باران صاحب فوراً سر ہلاتے سرے عام سکھی صاحب کی سلوا کو پسند کرنے کا اعلان فرما گئے۔ وہ بہت زیادہ کیوٹ ہے، میری مومو کی طرح، باران نے فوراً سے جواب دیا۔ ہاں ہاں، تو پھر ایک ڈیل کرتے ہیں، جب تم سکھی انکل یا اپنے بابا جتنے بڑے ہو جاؤ گے تو میں خود تمہارے لیے سلوا جیسی دلہن لاؤں گی۔ اس کے لیے تمہیں بابا اور سکھی انکل کی طرح بہت سی پڑھائی کرنی ہوگی، سمجھ گئے؟ دادوں کے لاڈ اور سمجھانے پر باران فوراً راضی ہوا۔ لیزے بھی مسکرا دی۔ ڈیل ڈن دادو، لیکن آپ بھولیے گا مت، سر بالکل سلواپی جیسی دلہن چاہیے مجھے۔ باران نے یقین دہانی کی تو نرمین اس کے دونوں بڑے گال چومے ہنس پڑی۔ بالکل نہیں بولوں گی، اب جاؤ فریش ہو جاؤ، پھر مومو تمہیں ریڈی کر دیں گی، بھاگو میرا بچہ۔ نرمین نے اسے روانہ کیا اور خود لیزے اور وہ حسین ہنس پڑی۔ یہ بہت شریف تھا ممی، اب دیکھیں اس کے پر۔ لیزے نے بھی شرارت بھری سرگوشی کی۔ اپنے بابا اور انکل کے ساتھ اسے زیادہ صحبت بابا جان کی نصیب ہے میری جان، اب دیکھنا اس کے پروں کی تعداد۔ نرمین بھی ہنسی، جبکہ براق صاحب سامنے سے آتے جب دونوں کو معصومانہ گورے تو دونوں ہی ہنس پڑی۔ لو یہ بات ہے، اب تو باران کے پروں پر بیٹھ کر ہم بھی اڑیں گے بھئی۔ براق جدون بھی شرارت سے کہتے پاس ہی آ بیٹھے۔ اڑنا بھی چاہیے ددو، آپ ابھی بھی بہت ہینسم ہیں، ہے نا ممی؟ لیزے نے یہ مکھن بالکل نہ لگایا تھا، پر جناب کے لیے مکھن بھی دل و جان سے قبول تھا۔ نرمین نے بھی فوری ہنستے ہاں میں ہاں ملائی۔ بس ایک عدد بیٹی کو اس کے گھر کا کر لوں، پھر خود بھی کوئی گرل فرینڈ ڈھونڈتا ہوں۔ لیزے تم ڈھونڈنا کوئی پیاری سی ددیا۔ براق صاحب کم تھے کیا؟ فوری نرمین کو چھیڑا جو آگے سے رحم طلب ہوتے دیکھنے لگی، جبکہ لیزے مسکرا کر فوری ددیا ڈھونڈنے کا وعدہ کر گئی۔ میں بھی ذرا فریش ہو لوں، مجھے اچھی سی اسٹرانگ چائے چاہیے تم دو میں سے کسی کے ہاتھ کی۔ براق جدون صاحب دونوں کو کہتے اٹھ کر گئے تو اس سے پہلے نرمین جاتی لیزے نے روکا۔ میرا کام ختم ہو گیا، میں بنا دیتی ہوں، آپ یہ دیکھ لیں ٹھیک کی نا؟ لیزے نے جلدی سے اٹھ کر گود میں رکھی ٹیپ اور سیزر میز پر رکھی۔ یہ دوراب کہاں ہے لیزے؟ نرمین کے پوچھنے پر لیزے جاتے جاتے پلٹی۔ وہ ساول بائی کو لینے گئے ہیں، یہیں آئیں گے، لیزے نے جواب دیا تو نرمین اس اولاد پر غائبانہ برہم ہوئی۔ کیا مطلب یہاں؟ اف دوراب، کیا کروں میں اس آفت کا؟ یہاں رہا نہ تو ساول ترسے عاشقوں کی طرح دیکھتا رہے گا اور مجھ معصوم کو خواہ ترساتا رہے گا۔ تم کال کرو اور کہو کہ ساول کو اس کے ٹھکانے پہنچائے، یہاں آئے تو دونوں کی ٹانگیں سلامت نہیں رہیں گی۔ ممی کی حفت پر لیزے قریب رکتے بازو گرد حصار گئی تو نرمین کے غصے بلکہ پریشانی پر گرد سی پڑی۔ مجھے حیدر نے بتایا کہ وہ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ اتنی ینگ اور چارمنگ لیڈی ہیں ابھی بھی، پھر سے گھر بسانے میں کوئی برائی نہیں ممی۔ یہاں دیکھیں، یہ مت سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے منہ کبھی نہیں بند ہو سکتے۔ جتنی ٹف لائف آپ نے جی ہے، آپ بھی محبت اور سکون کے بے شمار لمحوں کی مستحق ہیں۔ لیزے کا نرمی سے سمجھانا نرمین کے لیے بہت قیمتی تھا، پر وہ ایسے جذبات اس عمر میں صرف بچپنا سمجھتی تھیں۔ لیزے، وہ صرف محبت نہیں کرتا، وہ عشق کرتا ہے، اور میں اس کے جذبات کی کسی صورت لائق نہیں۔ بھلے برہان نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہو، پر آج تک نفرت نہیں ہو سکی۔ میں نے پورے دل سے چاہا تھا اس ہر جائی کو۔ میں ساول کو کیا دے سکتی ہوں لیزے، تم خود سوچو۔ یہ بڑھاپا دوں اسے جب میری ہر خواہش مر گئی؟ وہ تو پاگل ہے، میں اس کے پاگل پن میں حصہ دار نہیں بن سکتی۔ نرمین تکلیف کا شکار ہوئے دل کھول گئی۔ لیزے نے ان کا ہاتھ پکڑے ہاتھوں میں لیتے دبایا۔
जिन्हें हमसे सच्ची मोहब्बत हो जाए उनके लिए ना हमारे चेहरे की झुर्रियाँ मसला है, ना जिस्म के दाग। अगर सावल भाई आपसे इश्क करते हैं तो यकीन करें, आप इनके लिए आज भी इस दुनिया की सबसे दिलरुबा औरत हैं। लुक एट यू, किस कदर हसीन लगती हैं, ऊपर से इतनी रहम दिल, नाजुक, प्यार करने वाली। हैदर की मम्मी कम, बहन ज्यादा। 6-7 साल ही तो छोटे हैं वो आपसे। नॉट अ बिग डील। उन्होंने सारी मोहब्बत आपके लिए जो संभाली है, जब आपको मिलेगी तो आपके अंदर मरी हुई सारी ख्वाहिशें जिंदा होकर अंगड़ाई ले उठेंगी। रही बात बुरहान अंकल की, वो चले गए आपकी ज़िंदगी से, दिल से भी रुखसत कर दें, ताकि सांवल बाई की रियाजत का उन्हें भी सिला मिल सके। लीजे के प्यार भरे जुमले हों या उसका हाथ दबाकर नरमीन को उम्मीद दिलाना, सभी खूबसूरत था। मेरी जान, तुम बहुत प्यारी हो, खुद तभी तुम्हें सबकी फिक्र रहती है। मैं कोशिश करूंगी, पर तुम्हारा हैदर पिट कर रहेगा इस कारनामे पर। नरमीन की आखिरी बात पर लीज़े तो हंसी, वो भी हंस पड़ी। आप उनकी पटाई कर सकती हैं मम्मी, पूरा हक बनता है। मैं आपकी तरफ, बहुत तंग करते हैं, लगनी चाहिए क्लास। बस आप उदास ना हो बिल्कुल। मोहब्बत करने वाले देर की परेशानी नहीं बनते। चाहे आप भी रेडी हो, मैं दादू को चाय देकर खुद भी बारान को तैयार करके रेडी होती हूँ। लीजे ने नरमी से नरमीन को गले लगाया और अपना फ़ोन मेज़ पर से उठाती किचन की तरफ बढ़ी। तो खुद नरमीन भी गहरा सांस भरे रेडी होने की नीयत से बेडरूम की तरफ चली गई। सुन, आज पतलून शर्ट पहनी ना तो तेरी नाक फोड़ दूंगा। तेरा मेहंदी का शरीफाना आउटफिट भेजा है, वही पहनना। और हाँ खबरदार, जो सलवा को देखकर बहका। बेटा, आज तुझे वो सीखने को भी मुयस्सर नहीं होने देनी मैंने। तैयार होकर पहली सेल्फी मुझे मिलनी चाहिए। अगर मुझसे पहले सलवा तक गई तो आज तेरा एंड। सावल की रिहाई का प्रोसेस फाइनलाइज हो चुका था। बस वकील की कुछ जज से मीटिंग थी, तो सावल भी हमरा था। जबकि दुराब ने कोर्ट हाट हाल से बाहर निकलते यजदान को कॉल मिलाई, जो शर्टलेस खड़ा आईने में अपने खूबसूरत पुरकशिश फिगर पर सरसरी निगाह डाले, दाढ़ी पर हाथ फेरे इसे जरा छोटा करने का सोच रहा था। सलवा की गाल पर पड़ती स्क्रैचेस सोचते बीना बिना मुस्कुरा भी रहा था कि दुराब की धमकी पर वो मुस्कुराहट गहरी हुई। मेरी पहली महबूबा तो तू है, कहे तो पहली किस पे तुझे कर दूंगा, यजदान ने अभी से बहकते लहजे में कहा। तो दुराब हफीफ सा मुस्कुराया। इतना तो शरीफ के अभी तक पहला वार किया ना हो इस मासूम लड़की पर। बेटा, तेरे अंदर की कीड़ों से अच्छी सलाम दुआ है मेरी। दुराब ने बेचारे की चोरी पकड़ी तो यजदान साहब इस वार के खुमार में जा डूबे। मत याद दिला यार, मैंने इन दुनिया की रस्मों को ठुकरा कर अभी ले आना है उसे पास। सुखी की तरसी ड्रामेबाजी पर दुराब का दिल इधर से ही लानत का बंडल अरसाल करने का चाहा। या अल्लाह, सलवा तो गई काम से। अच्छा सुन, अपना सदका उतार देना लेना याद से, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। बिना सदका उतारे कमरे से कदम बाहर ना निकालना। मैं सावल भाई को लेने लेने आया हूँ, इधर से इनको गढ़ लेकर जाऊंगा, फिर तैयारी में शाम हो जानी। दुराब ने आहट पर गर्दन घुमाई, जहां वकील दो पुलिस एहलकारों के हमरा सावल इसी तरफ आ रहे थे। ठीक है मेरी जान, तेरा बेजा जोड़ा पहुंच गया, बेचता हूँ तुझे आग लगाती सेल्फी, चला जा मेरे पास। यजदान ने डोर नॉक पर बाबा के हाथ में जोड़ा देखते पलट कर कहा। तो दुराब हंसा, कमीना, आता हूँ। दुराब फोन बंद करता इन सब की तरफ लपका, जबकि सजावल फारूकी को देखते ही यजदान ने टावल गर्दन में लपेटे बाबा के पास रुकते उनका हाथ से क्लॉथ बैग लेते मैट्रेस पर रखा। आज आयशा फरहीन जिंदा होती तो कितनी खुश होती। तेरी जिंदगी के इस खूबसूरत वक्त को ममता भरे साय से महरूम करने में कुछ कसूर मेरा भी है यजदान। मैंने हमेशा आयशा पर अपनी माँ और बहन को अहमियत दी, इससे मोहब्बत का दावा किया, पर उसके जलने सुलगने की खबर ना हुई। आई एम सॉरी बच्चे, अपने बाबा को माफ़ कर दे। चावल के पछतावे अब किसी काम के न थे, पर यज़दान को कम से कम इतना इत्मीनान मिल गया कि सब अपनी गलतियों का इतराफ़ सीख रहे हैं। किसने कहा बाबा यार कि मैं उनके साय से महरूम हूँ? वो अब भी मेरे पास है, मेरे दिल में। आपको गलती का एहसास हुआ काफ़ी है। मुझे आपसे और दादी जान से इतना सा भी शिकवा नहीं। वैसे भी सलवा ने मेरी ज़िंदगी के हर दुख का मरहम अता कर दिया मुझे, और अब मैं इस दुनिया का सबसे मसरूर शख्स हूँ। सो चिल बड़ी, आपके इकलौते सपूत की मेहंदी है। सिजावल फारूकी की मुस्कुराहट पलों में लौटाता वो इतना खुश था कि सिजावल उसकी खुशी की कामिलियत पर डरकर फौरन गले लगा गए कि खुद यज़दान हफीफ सा फिक्रमंद हुआ। हमेशा मसरूर और महफूज रहो मेरी आंखों की ठंडक, ये तुम्हारे यार ने भेजा है। ऊपर चिट भी थी टांगों वाली दमकी के साथ। चलो रेडी हो जाओ जलवे बिखेरने के लिए। मैंने फिर दोस्त साहब और शनाइल को भी बुलाया है, होप सो सब ठीक है। आबा के सीना थपक कर जाने पर यज़दान बज़ाहिर मुस्कुराया, पर शनाइल के जिक्र पर फिक्र सी घेर गई।
फौरी पलट कर फोन उठाए, सलवा को कॉल मिलाई जो पीले हरे शरारे की कुर्ती और शरारा पहने अपना पार्टी सिंपल मेकअप करवाने में बिजी थी। रुकना, फोन आ रहा है। सलवा ने बेकरारी से आंखें खोली, जिस पर दोनों सहेलियों ने स्क्रीन पर सुखी देखते ओए होए किए छेड़ा तो वो दोनों को घूरती फोन उठाए एक तरफ कोने में आई। सुखी, सब ठीक है, कॉल क्यों की? सलवा के घबराने ने भी सुखी साहब पर खुमार की बारिश कर दी, ये पूछने के लिए कि दाढ़ी हटा दूं या स्क्रैचेस बर्दाश्त कर लेंगी। सलवा फौरन ब्लश करती निचला लब दांतों में दबा गई। बिल्कुल मत हटाएं, आदत डाल लूंगी। क्लीन शेव ज़्यादा प्यारे लगेंगे तो मुझसे देखना अफोर्ड नहीं होगा, चले बाय। सलवा ने बाकायदा मुंह में दबकर सरगोशी की। जनाब समझ गए कि सलवा सहेलियों में फंसी है। बाय की बच्ची, बात सुने, ये स्क्रैचेस सिर्फ आपकी गालों पर नहीं पड़ेंगे। आप, यजदान ने बात अधूरी छोड़ी जबकि सलवा का फोन हाथ से छूटते छूटते रह गया, क्योंकि अब मासूम बच्ची थोड़ी तेज हो चुकी थी। सुखी, खुदा के लिए आप बोलने से पहले इजाजत लिया करें। मेरा फोन गिरता ना तो आपको भी ऐसे ही गिराती, वो भी वेडिंग नाइट, टेरेस से नीचे। सलवा ने गर्दन मोड़े, दोनों सहेलियों के कान इधर ना पाए, जल्दी से डांटा। यजदान खुलकर हंसा। ऐसी ही बहादुर बीवी चाहिए जो पकड़कर मुझे कहीं भी गिरा दे। यज़दान की मानी है इस जसारत पर सलवा की गाल धुआं छोड़ उठे। कहीं भी की बात किसने की? मैं टेरेस से नीचे का बोला सिर्फ, और इतने आप मेरे गिराने से गिरने वाले। सलवा की दूर होने के सबब जुबान भी चल रही थी, वरना इतनी जुरत कहाँ इसमें। आप एक किस करके कहीं भी गिरा सकती हैं मुझे, आज ट्रायल कर सकती हैं, इजाजत दे रहा हूँ। यजदान ने कसम खा रखी थी बिना ब्लश सलवा को गुलाबी करके छोड़ेगा। उफ उफ सुखी, टच भी मत करिएगा वरना चिल्ला दूंगी। मेरा फेस शर्तिया रेड हो गया होगा। अब इन दो चुड़ैलों ने तंग कर करके मेरा खून हुश कर देना है। सलवा भागने के बावजूद यजदान की पुकार पर रुक गई। आप कहिएगा, मेरे वो वेडिंग नाइट प्लान बता रहे थे। सलवा का चेहरा मुस्काया पर इसी लम्हे डरी भी। सर तोड़ दूंगी आपका, गंदे बच्चे। सलवा ने हफीफ से घूरते डांटा। अच्छा बच्चा हूँ, आप सर तोड़ने के बजाय बस गुस्से में मुंह चूम लीजिएगा। आपका सारा खुश खून बहाल ना कर दिया तो नाम बदल दीजिएगा मेरा ब्यूटी। यजदान की बेबाक गुफ्तगू मजीद सुनती तो शायद बेचारी की रूह परवाज कर जाती। उफ सुखी, बाय। बेचारी सनसनाहट से फील करने पर फौरन फोन बंद कर गई, क्योंकि पूरा जिस्म दहक उठा था। और रही सही कसर सहेलियों ने पूरी की, क्योंकि दोनों शादीशुदा थीं तो समझ गई कि सलवा की गाल सुर्ख और गर्म किस वजह से हुए, जबकि सलवा बेचारी सहती रही और यज़दान पर जी भर कर तप चुकी थी। यार, मुझे यहाँ क्यों लाए तुम? नरमीन साहिबा से जूते पड़वाने हैं क्या? ना बाबा, मैं अंदर नहीं जा रहा। गाड़ी करके पोर्श में एंटर हुई, इसी स्पीड से सांवल का डर एहतजाज की सूरत उभरा। साहब ने हंसकर हिरासा सावल कुरैशी को देखते डोर ओपन किया और जंप मारे बाहर उतरा, जबकि सावल का दिल यही किया गाड़ी समेत भाग निकले। पर दुराब हैदर जदून ने कसम उठा रखी थी कि इस सदी में तो नहीं सुधरेगा। अब आपने सिर्फ घर के अंदर ही नहीं, मम्मी के दिल में भी एंट्री मारनी है। चुप करके बाहर निकले, वरना आज भी दाल चावल खिलाकर जेल की याद दिला दूंगा। अगर आप चाहते हैं आपकी शानदार जियाफत का एहतमाम हो तो निकले, शाबाश। तुराब ने उनकी जानिब का डोर खोले। जब सर झुकाया तो सावल डरे सहमे बच्चे की माने दूसरी तरफ चिपका था। जो भी था इस दाल चावल की धमकी पर बिलबिलाते हुए बाहर निकला। तुम मुझे दाल चावल खिलाकर तो देखो बरहुरदार, अपने सुन हाथ पैर तुम्हें ही पंचिंग बैग बनाकर बहाल करूंगा। सुन हाथ पैर से याद आया यार, 7 सालों में जंग लग गया मेरे मसल्स को। किसी अच्छी सी जिम में मेरा इंदराज तो करवा दो। सावल यकदम ही मजलूम बने बाहर निकले तो दुराब ने हंसकर उनकी तरफ देखते जिज किया। ये मसल्स को जंग नहीं लगा, अब बुढ़े हो गए हैं। दुराब ने भी डोर वापस बंद करते सुलगाया। बूढ़े हो गए तुम, मैं जवान हूँ। सावल की त्राहट पर दुराब मुस्कुराता जरा करीब रुका। तो जवानों की तरह नडर होकर अंदर चलकर सबूत दें कि आप अब भी शेर की ललकार रखते सावल कुरैशी हैं। रही बात जिम की, समझे इस्लामाबाद के सारे फिटनेस क्लब अपने हैं। दुराब ने भी जी भरकर उकसाया, जबकि सावल भी इस बार मुस्कुराहट को होंठों पर फैलने से रोक ना सके। मम्मी को बताया कि मैं आ रहा हूँ। वो दोनों एक साथ घर की मेन बिल्डिंग की जानब पेशकदमी कर रहे थे। सावल ने बेकरारी से गर्दन घुमाकर इस्तफसार किया। अपनी डार्लिंग की ड्यूटी लगा आया था। आप लीज़ी के टैलेंट को अंडर एस्टिमेट ना करें, वो किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए मना सकती है। तुराब ने अपने क्राइम पार्टनर का जिक्र किया ही कुछ यूं रश को लाड से कि सावल को उसके शोहेपन पर प्यार आ गया। हाँ, वो तुम्हें 7 साल तड़पा सकती है तो कुछ भी कर सकती है। चलो मिलते हैं तुम्हारी इश्कम से। सावल और दुराब साथ ही घर में दाखिल हुए।
जबकि पहला सामना ही बुराक जदून और बारान से हुआ। जबकि लीजी रूम में भी गई थी, अलबत्ता नरमीन खाने का इंतज़ाम देख रही थी, क्योंकि खुद तो वो लोग मेहंदी पर इनवाइटेड थे, पर सावल की पसंद की हर चीज़ बनवाई गई थी। सावल, मेरे बेटे, आंखें ठंडी हो गई तुम्हें देखकर। बच्चे, गले लगो। बुराक जदून ने जिस खुशी से इसे गले लगाया, सावल की रही सही घबराहट भी खत्म कर गया ये हिलावत हेज बगलगीर होना। कैसे हैं आप अंकल? अभी भी फिट एंड चार्मिंग? वो भी भरपूर मोहब्बत से रूबरू हुए उनका अहवाल दरियाफ्त करने लगा। जबकि बारान साहब की हैंडसम लुक्स देखते तो आपने अपनी इजाद को उठाकर प्यार किया। भाई देख लो, मैं पैदा ही फिट एंड चार्मिंग जो हुआ था। खुशी हुई तुम्हें आज़ाद देखकर। मोहसिन हो तुम मेरे सावल, खुश रहो, जीते रहो। दद्दू की दुआ में जट से दुराब बोला, और जल्दी से सुहागन हो जाओ। दुराब की आड़ी तिरछी दुआ पर सावल और बुराक के साथ बारान भी इसे खैरत से घूरा। कुछ नहीं मेरी जान, तुम्हें समझ नहीं आएगी। मिलो अपने एक और दादा से। दुराब की जुबान सावल का दिल चाह काट दे, पर दांत पीस कर रह गया बेचारा। जबकि इतने यंग दादा को देखकर बारान ने नीचे उतरते ही अपना हाथ आगे किया। कितने प्यारे हो तुम मिस्टर बारान हैदर जदून, लेकिन अपने बाबा की तरह शरारती मत बनना, ओके? सावल ने उसका बढ़ाया हाथ चूमते ताकीद इसे की, और इस बीच देखा घूर कर दुराब को। दद्दू के कंधे पर बाजू खुमाई किए एक्शन मारे खड़ा था। मेरे बाबा शरारती तो नहीं है दादो, है ना बाबा? बारान को अब कहाँ मंजूर थी अपने हैंडसम फादर की बुराई। तीनों ही हंस पड़े। जबकि नरमीन के किचन से निकलकर वहीं आने पर सबसे पहले दुराब वहां से बच बचाकर कर कमरे की तरफ भागा, क्योंकि जानता था मम्मी के हाथ लगा तो कान साथ से उतार ही देंगी। खुश आमदीद सामल। नरमीन के फीके से वेलकम पर माहौल संजीदा सा हो गया। शुक्रिया, और यहाँ आकर आपको ज़हमत देने के लिए माजरत। सावल ने शर्मिंदा सा होते जवाब दिया, तो नरमीन जिन शिकवा किनार नज़रों से जवाबन देख रही थी, उसकी ताबना की कम बारान और बुराक साहब ने की कि सावल को उसका रूम दिखाने बढ़ गए। जबकि कमरे में पहुंचकर दुराब ने ड्रेसिंग के मुकाबले खड़ी बाल ड्राई करती लीजे को देखा, और करीब आते ही बाजू इतराफ लपेटे लीजे को अपने सीने से लगाया। ओए सजना, बाद में पहले बताओ मम्मी से बात की? मुझे मार तो नहीं पड़ेगी ना? इधर देखो, समझाया तुमने मम्मी को? लीजे के हाथ से ड्रायर लेकर सामने रखते तुराब ने इसे अपने सामने पलटाया, जो जट से बाजू गर्दन में हार से परोती पुरस्रार सा मुस्कुराई। हाँ, पर मार तो खानी पड़ेगी। मम्मी से पिटता उनका बेबी कितना क्यूट लगेगा ना? तुराब की एक्साइटमेंट लम्हे में वो सीला सा सरूर बनी। मेरी मोहब्बत की शिद्दतों की ज्यादती पर सांस छोड़ती लीज़ी भी बड़ी क्यूट लगेगी। तुराब का मानी है इस जवाब। मुकाबिल मुस्कुराते शरारती होंठों पर रक्स करती मुस्कुराहट उचक गया। फ्लर्टी कहीं के। लीज़ी ने गाल फुलाए, जिनको दुराब ने बेहद मोहब्बत से बारी बारी चूमा। यस आई एम। इस फ्लर्टी के फ्लर्ट के बिना आप जी कर दिखाओ जरा। वो उसकी ताज़ा खुशबू में मस्त होते खुद पर इतराया। फूले गाल सिमट गए, आंखें फैली। आप फ्लर्ट करते हैं? मुझे तो लग रहा था प्यार करते हैं। मासूमाना सी शक्ल पर डेरों मजलूमियत सजाए लीजे ने दुराब की धड़कनों का तालमेल बिगाड़ा। बस तुम्हारी यही सरता पैर घुमाने की आदत छूट जाए ना, तो एक्स्ट्रा यमी हो जाओ तुम। मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ इस नन्ही जान को बहुत अच्छे से पता है। भूल गई हो तो ट्रेलर दूँ इश्कम? वो उसके बहकने से डरती दिखाई दी, क्योंकि मुनासिब वक्त नहीं था, वरना बिलाशुबा अगर वो बहक जाए तो लीजे के लिए मौसम हसीन कर देता था। जी नहीं, सुखी बाई का इवेंट है, अपने खुमार संभाल लें। चाहे फ्रेश हो, हम लेट हो जाएंगे। मैं जाकर सावल बाई से मिलकर आती हूँ। लीजे ने गीले बाल ही समेटे उसकी बाजुओं से निकलकर भागना चाहा, जब दुराब ने पेट पर हाथ जकड़ते जकड़ कर अपने साथ लगाया। मुझसे कौन मिलेगा? तुराब की पुरहमार सिरगोशी पर लीजे जरा चेहरा घुमाती मुस्काई। मम्मी, वो भी जूते के साथ, कहकर वो ऐसी महारत दिखाकर भागी कि दुराब दांत ही किचकिचाता रह गया। दरवाजे के पास रुक कर ठहरती वो फ्लाइंग किस करे फिर भाग गई। पर तरसे मौसूफ एक उड़ती हुई किस कैच करते मुंह बसोड़कर सीना थपकते रह गए। मैंने तुम्हारा नंबर सेव कर लिया है। मैसेज करके पूरे हक से तंग करूंगी। एंड टाइम पर वीजे ने बेवफाई की, वरना अब तक तुम्हारी सांसों में आकर घुस चुकी होती। अच्छा बताओ, क्या कर रहे हो? डार्क ग्रीन लेयर्ड पर बहुत खूबसूरत ड्रेस पहने शनाइल आज अलग वाइब्स दे रही थी। गोल्ड के मून शेप रिंग्स पहने, जो ड्रेस की जंजीरी बेल्ट और जमशेद के दिए ब्रेसलेट से मैच कर रहे थे। जबकि मेकअप बहुत ही लाइट पर प्यारा किया। हील्स निकाल कर रखे शनाइल ने पहले जमशेद को व्हाट्सएप किया। तुम्हें ब्लॉक करने लगा हूँ। इंतहाई जल्दी जवाब आने ने शनाइल की धड़कनें तेज की। फिर जवाब भी वो।
जवाब भी होता वो जवाब जो भी होता, वो हॉस्पिटल की लान में एक व्हील चेयर पर बैठी एक नॉर्मल बच्ची के पास बैठा था, जो बार बार बॉल फेंकती और जमशेद उसे उठाकर पकड़ाता। और इस बीच उसका अपना सांस फूल रहा था। ब्लॉक नहीं करना, मैं शूट कर दूंगी खुद को, फौरी रिप्लाई किया। जमशेद ने मैसेज देखते बेजार होते सांस खींचा, जबकि बॉल नर्स की तरफ फेंका, जो अब खुद इस बच्ची को पास करने लगी। क्या तकलीफ है, कैसे जान छोड़ोगी? इस जवाब पर शनाइल को सोचना न पड़ा। किस वाला इमोजी भेजे, साथ फौरी मरने के बाद भी नहीं लिखकर साल किया। जमशेद ने जिंदगी में बड़े रीड देखे थे, पर यह तो सबसे ऊपर आ चुकी थी। ओके, बताओ कैसी लग रही हूँ? फौरन से सेल्फी लिए शनाइल ने भी भेजी और साथ सवाल किया। जमशेद ने उसकी पिक्चर सरसरी देके स्वाइप की। नहीं देख सकता। तीन लफ्जी जवाब। शनाइल उदास हुई। तुम्हारे लिए भी हो जाऊंगी तैयार, फिर तो देखोगे ना? प्यार और मान से पूछा गया। साथ मरहम लगे दिल का इमोजी था, जो ये बता रहा था, अगर तुम हाँ कर दो तो मेरा टूटा दिल ऐसे ही जुड़ जाएगा। नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं देखूंगा। तब तक नहीं देखूंगा जब तक तुम मुझे देखना छोड़ ना दो। बिना किसी इमोजी के स्पार्ट सा जवाब आया। मैं नहीं छोड़ सकती, पिक्चर भेजो प्लीज। मेरे पास एक भी नहीं है, मुझे तुम्हारी आंखें देखनी है। शनाइल के सवाल पर जमशेद ने आगे से फीकी स्माइल वाला इमोजी भेजा। मेरी आंखें देखने की चीज नहीं आजकल। बात सुनो शनाइल, यहाँ आने का सोचना भी मत, तुम्हें यहाँ मैं नहीं मिलूंगा। इसलिए अपना डीठपन छोड़ो और वहीं टिक कर बैठो, अपने पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारो। बख्श दो मेरी जान, तुम्हें सोचता हूँ तो सर दर्द से फटने लगता है। ये सब टाइप करने में से बहुत वक्त लगा, पर वो सब्र से पैगाम मिलने तक इंतज़ार करती रही और फिर कर्बजदा हो गई। तुम मुझे मत सोचो, तुम सोचने चाहने और ख्याल रखने के सारे हक मेरे मुंह पर मार दो, और तुम्हारे सर में दर्द होने नहीं दूंगी। एक बार अपना तबीब चुन लो। तुमने जो दिन को बारी सांस ली, मेरा दिल अब भी इस तले दबा है। मैं बहुत जल्द आ रही हूँ, मत भागना मुझसे। वो भी मोहब्बत के सारे जज्बे समेट कर जमशेद अहमद की राहों में बैठी थी। भले वो पायमाल ही करे, पर इस राह से गुजर जाए। शनाइल, जमशेद का हाथ उसका नाम लिखते कांपा। समझ जाओ मेरी बात, मत मेरे मेरे पीछे खुद को ख्वार करो। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मुझे मजबूर ना करो, क्योंकि मैं आपके गया तो मेरे अगले ठिकाने की खबर तुम्हें मरते दम तक नहीं मिलेगी। वो लिखते हुए तकलीफ में था, तो ये पढ़ते हुए शनाइल का दिल 100 टुकड़ों में बटा। ऐसा कोई ठिकाना मत चुनना जमशेद, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। भेज दो ना पिक्चर। कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, देखकर डिलीट कर दूंगी, नहीं नजर लगाऊंगी। और ना चाहते हुए भी शनाइल की आखिरी बात पर मुस्कुराया। अच्छी तस्वीर बना दो जिसमें बीमार ना लगूं। जमशेद ने पास ही खड़ी नर्स को कहा, जो मुस्कुराती फोन लिए जरा दूर हुई। आप बुरी तस्वीर में भी बीमार नहीं लगेंगे मिस्टर जमशेद, इतनी गारंटी देती हूँ। वो प्यारी और छोटी सी उम्र की नर्स थी, जिसने बड़े यकीन से जमशेद की तस्वीर खींची। वो हॉस्पिटल के कपड़े नहीं पहनता था, तभी हॉस्पिटल का मरीज नहीं लगता था। अपने अजली बदरंग सी टी शर्ट के साथ घुटनों से फटी जींस में बेतरतीबता सा खुलिया लिए वो अच्छा लग रहा था। देखिए, नर्स करीब आती फोन पकड़ाते बोली। जमशेद ने सर उठाते सराहती नजर डाली। इम्प्रेसिव, ये मेरी अब तक की पहली ढंग की तस्वीर है छोटी बहना। नर्स की इल्तफात भरी नजरों पर जमशेद ने फौरन से बहन कहकर बेचारी का दिल ही चकनाचूर किया। शुक्रिया बड़े भाई। नर्स मुंह फुलाती वापस इस बच्ची की तरफ लपक गई, जबकि जमशेद ने फीका सा हंसते शनाइल को पिक्चर भेजी। देखकर डिलीट करो फौरन। पिक्चर के साथ लिखकर साथ खोपड़ी का करंट छोड़ता साइन भेजा, जैसे ना डिलीट की तो वही करंट लग जाएगा। शनाइल ने जूम किए वो झूठी मुस्कुराती आंखें देखी। वो उसके चेहरे का हर नक्श हर जाविया परखने के बाद बैक पर नजर आते हॉस्पिटल के थोड़े से साइन बोर्ड पर ठटकी। तुम कहाँ हो, पिक्चर किसने ली? तुम्हें फीवर क्यों है? आंखें रेड हैं तुम्हारी। थोड़ी सी मतलब बुखार होगा। वो जो तारीफ भरे जुमले उम्मीद कर रहा था, शनाइल की तफ्तीश पर गहरा सांस भरकर रह गया। पिक्चर गर्लफ्रेंड ने ली है, इसे मेरा हक करना इफेक्ट कर गया तो हम हॉस्पिटल आए हैं। जमशेद ने सुलगते जो समझ आया टाइप किया, जबकि शनाइल ने वापस पिक्चर ओपन की, फिर क्लोज क्लोज किए चैट में आई। तुम मेरे अलावा किसी को देख भी नहीं सकते, इसलिए अपने झूठ अपने पास रखो। हॉस्पिटल क्यों हो, जवाब दो मुझे। शनाइल के सवाल जमशेद के दिमाग पर हथौड़े बरसा रहे थे। तुम अपनी मौत अगर मेरे हाथों नहीं चाहती तो बंद करो मैसेज करना। समझ नहीं आ रही तुम्हें, बात नहीं करना चाहता? क्या मेरे चीखने चिल्लाने का वेट है? खुदा के लिए शनाइल, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो प्लीज, मैं तुम्हें सोचना भी नहीं चाहता। सुना तुमने? वो उल्टा काल करते ही बहुत कर्ब से बोला। हालांकि उसका यूं बोलना नर्स और इस बच्ची को चिल्लाना ही लगा। तभी वो दोनों परेशानी से बिगड़ते जमशेद जमशेद को देखने लगी।
میں اپنی موت تمہارے ہاتھوں سے ہی چاہتی ہوں، آتی ہوں، اب بات آمنے سامنے ہوگی۔ شنائل نے غصے سے کال بند کر دی، جبکہ جمشید اس سے پہلے فون گارڈن کے وسط میں اٹھ کر دے مارتا، نرس اور اس بچی کو سہما دیکھے ارادہ ترک کرتا، جھٹکے ہاسپٹل کی بلڈنگ کی طرف چلا گیا۔ شنائل نے ویزا آفس والوں کو ساتھ ہی کال ملائی۔ کتنے دن مزید لگیں گے آخر؟ زندگی اور موت کا سوال بھی ہو سکتا ہے نا۔ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اتنا لٹکایا کیوں جا رہا ہے ایک چھوٹا سا کام؟ وہ کاؤنٹر بوائے پر برس ہی گئی۔ میم کام ڈاؤن، میں آپ کو ہی کال کرنے والا تھا۔ اپنا ویزا اور پاسپورٹ بھی کر لیں، صبح کر رینیو ہو گیا ہے۔ شنائل کی آنکھوں میں دفتن آنسو اتر آئے۔ شکریہ کہے فوراً سے کال بند کی اور آنسو رگڑتی اپنی ہیلز پہننے لگی۔ تم بچ کر دکھانا مجھ سے جم کے بچے، تمہارے کسبل تو میں نکالتی ہوں کل۔ تکلیف اور دکھ میں چڑ لیے وہ رو بھی رہی تھی اور غصہ بھی اتار رہی تھی۔ ہے کیسی لگی اب تک کی سب سے مزیدار سی قسط؟ کیا خیال ہے، شنائل پہنچ جائے گی یا جمشید دم دبا کر بھاگ نکلے گا؟ سکھی کی مہندی خیریت سے ہوگی یا ہونے والا ہے اس کی خوشی میں کوئی دھماکہ؟ ساول اور نرمین کو درا بیک کر پائے گا یا نہیں؟ بہت سی مستی، بہت سا ٹویسٹ اور بہت سے کھٹے میٹھے شاکس منتظر ہیں۔ بیسٹ سین اور ڈائلاگ کون سا لگا ضرور بتائیں، اور چینل لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ ان کے بعد آ رہے ہیں عاطف، پارس اور روشانے آگ لگانے۔ تو ملتے ہیں اب ہم اگلی ایپیسوڈ میں ایک دن کے گیپ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ 47 میں ملتے ہیں۔